Hello, good evening everyone. Am I audible to you all? Yes. Hello, good evening. So as you can see, today we are starting with the chapter circle. In today's one shot session, we'll just complete all the things which are related to circle. As you can see here, the whole chapter is based on only 2 points. That what is a circle, so whether you are trying to draw a tangent from a point of the circle or from exterior point, right? Suppose that if a point is in the interior part of the circle. So obviously we know that if point is in the interior part, then obviously we cannot draw any tangent to that point. Okay, so this will be our first point. In the line, you have already seen that what is the mean of secant, what is the mean of tangent, what is the mean of diameter. If we are talking about secant, this will be a chord. If you have to talk about second, then we just have to extend this one, right? So this will be the second in that case. If you have to talk about only chord, then this will be a chord. Then second part, that a chord passing through the center. A chord passing through the center is known as diameter. Is known as the diameter. Okay. In 10, basically we just have to deal with what is the tangent, how many tangents we can draw from any point on the circle, or how many tangents we can draw from an exterior point to the circle. Suppose the point is on the circle, then there will be only one line which touches that point, which is known as a tangent. As you can see, the whole chapter is based on only these two figures. Each and every example or each and every theory part, we have to go through. Suppose we are talking about a tangent to a point, then obviously in this case, the radius is always perpendicular. The radius is always perpendicular to the tangent, like this one. Many more times we have to use this concept in our section. The second part is that suppose we are considering that tangents are drawn from an exterior point, then from exterior point we can draw two tangents to it. So our very much important part is that the length of tangents is always equal when we are considering a tangent from to the exterior point. This will be our first theory part. Okay. First theory thing, but that perpendicular one. This is known as a radius tangent theorem. And second one is this, that is length of the tangent is always equal. As you can see, we just have to use this abundance of triangles. That's it. Suppose this will be our point P, this will be our point A and B. Then our theorem states that the length of PA is same as length of P. Obviously, OA and OB is nothing but a radius, right? And using that radius tangent theorem, we can say that OB is always perpendicular to that tangent. Done up to this? Okay, getting this one. Sometimes they will provide you what is the actual distance of this point O and A. Suppose we, or we can say that sometimes they will give you that what will be the length of radius. Sometimes they will give you what is the actual distance between origin to that external point. Suppose we'll say it will be something like 30, then you have to find what will be the value of length of PA. There will be such types of questions which can ask you in your exam for 1 or 2 markers. Always remember that whenever you can see there are chances to form two triangles, then always we just have to check for the correspondence point. Getting this one, getting this part, okay? So either they will directly ask you to prove this theorem. Suppose they will give you only radius tangent theorem,
and they'll say that state and prove radius tangent theorem, or sometimes they will give the actual statement. For the first 5 minutes, we'll just go through all the theory part so that we can start with the actual question. Okay. Radius tangent theorem is nothing but angle between a tangent and a radius is always 90 degree. And two tangent theorem is nothing but length of tangents are equal. Okay. So first of all, we'll go through the first theorem. The tangent at any point a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. So for proving this theorem, you just have to use that the shortest distance one case, right? Because we know that shortest distance will be always a perpendicular distance here. So what exactly you have to do in this theorem? First point is that whatever is there in that statement, we just have to write it using that P, O and all other. Let AB be the tangent to the circle with center O and P will be the point of contact. It means that we are trying to draw a tangent to a point P which is on the circle. What we have to prove here is that OP and PQ are perpendicular, right? It means that OP is perpendicular to it. So for this, for a proof, we'll start let there will be another point Q other than P on the tangent AB, something like this. What we have to use here for proving this first theorem, you just have to use the shortest distance one take. Fine. So let Q be the any other point on that tangent which is other than P. So obviously Q lies outside the circle because we are talking about tangent and tangent has been drawn from the point P, right? It means that that line will touch the circle only at one point. So Q will be obviously outside the circle. So as Q is the outside the circle, it means that OQ is obviously greater than radius, right? OQ will be always greater than the radius. But we can put R as the OP because we know that OP is nothing but the radius. So what you will get here, OQ is always greater than OP for any other point Q on the tangent P. So as we are getting that, OP will be the always shortest distance. Hence we can say that OP is perpendicular to it because we know that the shortest line segment drawn from the any point to that line is always perpendicular to that line. See, देखो बच्चों ये एज इट इज क्वेश्चन आपको 3 मार्कर के लिए पूछा जाता है बेसिकली ज्योमेट्री में जो भी कुछ आपको वेटेज वहां पे दिखाई देगा विच इंक्लूड्स द चैप्टर ट्रायंगल्स एंड सर्कल उसका वेटेज ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का है एंड उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एज इट इज थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है राइट सो यू हैव टू डील विद दिस फाइन गेटिंग दिस वन बहुत ही सीधा साधा वे है जैसे फर्स्ट थ्योरम के लिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट याद रखा था वैसे ही फॉर प्रूविंग द सेकंड थ्योरम you just have to check that there are the chances that we can see two triangles. So whenever there will be two triangles, you just have to check that whether can we prove the correspondence between them or not. Fine. So theorem 2 states that the length of the tangent drawn from an external point P to the circle are equal. Means in such a manner what we have to check length of PN is same as length of PB. So for that first part आपको क्या करना है जो भी कुछ वो triangle वाला part था but as तो triangle आपको दिखेगा नहीं as an construction you have to join this PO, AB and AA. That so first part is that you just write down what is there in the statement. Let P be the external point to the circle with center O. Let PA and PB to be the tangents drawn from the point P where A and B will be the point of contact. So we have to prove that PN equals to PB. So for that, first thing is that we have to see that what are the chances so that we can see there are two triangles in this figure. So for that, first part is that we have to join that OA, OB and OP. Then after that, we just directly try to do this one. First part is that obviously OA is same as OB because reason is nothing but radius of the same circle.
Second part is that as we have proved in the first theorem that radius tangent theorem, angle between tangent and angle between radius will be always 90 degree. Hence, we can say that triangle OAP is same as the triangle OP, which is equal to each of 90 degree. Second part is that OP is same as the OP because it is nothing but just a common side to both the triangle, right? So hence we can see that these two triangles correct to each other using SAS theory. एंड ऑब्वियसली ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। ये जब हमने ईच एंड एवरी चैप्टर देखा था तब भी मैंने आपको बोला था सीपीसीटी आपके बहुत ही ज्यादा काम की चीज है बिकॉज सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल प्रूव करना आता है या तो एस 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 से रहेगा या फिर एस एस से रहेगा या फिर ए एस एस से रहेगा और द राइट एंगल राइट सो एक बार जब आप कॉन्ग्रुएंस triangles prove करते हैं, you just have to say that corresponding parts of common triangles are always equal. Hence, we have proved the given theorem. Okay, so the whole chapter is based on only two theorems. Either they will directly ask you to prove this theorem, or there will be few questions based on these two. Okay, so here we have the first question. In the figure given below, PA and PB are tangents to the circle drawn from an external point P, where CD is the third tangent, touching the circle and Q. We have given that PA equals to 10, then DQ equals to 2 centimeter. Then we have to prove what will be the length of PC. That's it. We just have to deal with this concept. So first point is that PA is equal to 10 centimeter. But we know that the length of tangents will be equal when we are saying that the tangents are drawn from an exterior point. So as the PA is equal to 10 centimeter and PB is also the same jet drawn from the point P. So what we can say here, PA is same as the PB and as PA given as a 10 centimeter, so this will be 10 centimeter again. Getting this one? Then up to this part. So अगर PA PB भी आपका अगर 10 बन जाता है, second part मुझे क्या दिया था? That DQ equals to DQ means this part. So as the DQ equals to 10 centimeter, hence we can say that DB will be also 2 centimeter because just consider this. We are saying that we have drawn two tangents drawn from the exterior point D. So obviously length of tangent will be equal. If DQ is centimeter, then definitely we can say that DB is equal to 2 centimeter. So they have asked us to find the value of a PC. They have asked us to find the value of a PC. So as this is equal to 2, similarly you get will be 2 again, right? Getting this one. So its answer will be 10 minus 2, which is nothing but 8 centimeter. Getting this part? Getting this one? Okay. See, again there is a one marker question. A tangent PQ at a point P to a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O and blah blah blah. जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई देता है जिसका डायग्राम उन्होंने नहीं दिया होगा, so first part is that we just have to draw a rough diagram for this. So what they have given to you, suppose this is the circle, okay? We have this circle, then tangent PQ at the point P to a circle of radius 5 centimeter meets a line passing through the center O at the point Q with something like this. ये ऐसे कुछ आपको बनेगा. अगर ये रहता है O, then ये बन जाएगा आपका Q, and this will be your tangent P, PQ. Then आपको क्या बताया था इस केस में? First thing is that they have given you what will be the value of OQ, which is nothing but 13 centimeter. Second thing is that we know what will be the radius of this circle. It will be 5 centimeter. One more thing,
we know that whenever we are talking about such kind of function, whenever there will be a radius with tangent, always we'll use the actual one, right? So you just have to check that what will be the actual value of p. So we know that in the triangle OPQ, where measure of angle P will be 90 degree. So obviously you can use the Pythagorean here. So OP square plus PQ square is equal to OQ square, right? Hypotenuse square. So अगर आपको directly पता होते हैं सारे ये जो भी कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो डायरेक्टली आप बोल पाओगे दैट दिस विल बी 12 अदरवाइज आप रेगुलर वे से कैलकुलेट करोगे ये बन जाएगा आपका 13 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 so 25 plus pq square is equal to 169 you just have to check that what will be the value of pq square which is equal to 169 minus 25 which will give you answer as 144 hence the value of pq will be 12 centimeter very much easier one question, right? But always remember that there will be definitely one or two marker question which is based on either tangent radius theorem or equal tangent length theorem. Fine. See, what is this? ये थोड़ा सा अलग कुछ आपको दिखाई देगा. What we have is tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at angle 80 degree. Then we have to find what will be the measure of POA. But our first part is that सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ लीनियर सेगमेंट में आपके पास क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम एक काम करेंगे दैट आपको क्या एक कोशिश करनी है रफ डायग्राम. So suppose this will be PA, this will be PB, okay, this will be A, this will be B and P here. So we know that the two tangents are inclined to each other at 80 degree. ये बन जाएगा आपका O जो हमेशा आपका रहता है सेंटर. So if you will just draw these two lines because A is nothing but point of contact, B is nothing but point of contact. So using tangent radius theorem, you know that this will be a 90 degree one. Then up to this part, अगर आप यहाँ पे focus करते हो, then we know that for this quadrilateral, AOB, किसी भी क्वाड्रिलेटरल अगर आप कंसीडर करते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए वहां पे मेजर सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसमें से ये 90 मतलब डेफिनेटली 360 में से सबसे पहले तो आपको 180 करना है माइनस. सो 180 डिग्री. This will be the addition of measure of angle AOB plus APB. तो APB तो पहले से आपको पता है. अगर सिर्फ ये फाइंड आउट करना है then just subtract 80 degree from it which will be a measure of AP, right? So the required answer is equal to ये कुछ आपका बन जाएगा. आपको फाइंड आउट क्या करना था अभी POA कितना रहेगा. POA मतलब आपको ये चाहिए. देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है. आपको जो फाइंड आउट करना है वो अलग कुछ केस है. अगर ये आपका रहता है 90 डिग्री then just check here. आपको ये पता है that ये जो APO and BPO ये जो टू ट्रायंगल्स आपके पास है APO and BPO ये जो आपके पास दो ट्रायंगल्स है वो तो कॉन्ग्रुएंट है. हमने लास्ट मतलब जो सेकंड है हमने प्रूव किया था वहां पे ही देखा था. अगर ये दोनों भी ट्रायंगल रहते हैं कॉन्ग्रुएंट तो बड़े काम की चीज आपकी क्या रहने वाली थी CPCT दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल. ये करस्पॉन्डिंग्स रहेंगे मतलब अगर ये टोटल आपका रहता है 80 डिग्री तो सिर्फ आप APO के लिए क्या बोलोगे ये बन जाएगा हाफ ऑफ इट. सिमिलर ये भी बन जाएगा हाफ ऑफ इट. गेटिंग दिस वन. ये समझ में आ रहा है आपको. हमने यहाँ पे क्या किया सबसे पहले आप यूज करने वाले हो that if this is the case then ये जो two triangles आपको दिखाई दे रहे हैं those will be always congruent together and जब congruent triangles आपको मिल जाते हैं तो आप corresponding parts के बारे में बोल सकते हो.
देन अप टू दिस पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है हम कौन सी चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं? देखो अगर एज इट इज आपको 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये बाकी सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपलिसिटी का यूज करोगे। बट अगर सेम क्वेश्चन आपको 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर के लिए पूछा जाता है देन इन दैट वी हैव टू डू द करस्पॉन्डिंग between the triangles as well. Getting this one? क्या ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है? ओके ये जितने भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सी अगेन वी हैव दैट फर्स्ट क्वेश्चन PA and PB are tangents from a point P lying outside to the circle where PA is given as a 10 centimeter and APB is equal to 60 degree. Then we have to find what will be the length of chord AB. क्या सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा वो सर्कल। एक बार जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो सेकंड चीज हम क्या करेंगे, जो भी कुछ आपका ये एक्सटीरियर पॉइंट पी रहने वाला था जहां से आप ये टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले हो, सपोज दिस वन, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गए। ओके अनदर चीज आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन टू एज अ 10 सेंटीमीटर। अगर आपका एपी रहता है 10 सेंटीमीटर का एंड अनदर पॉइंट इज दैट measure of angle APB, measure of angle APB is given as a 60 degree. ओके तो फिर आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब ये सब आपको यहाँ पे अभी करना होगा कैलकुलेट, दैट व्हाट विल बी द एक्चुअल दिस इज। इतना समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक पूरा क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट पार्ट देखो, मेरे पास सिर्फ इतना ही गिवन पार्ट था एंड जो आपको फाइंड आउट करना है वो तो लेंथ ऑफ एबी के बारे में है, मतलब इसके लिए आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करता है, अगर ये आपका एपी रहता है 10 सेंटीमीटर का देन वी कैन से दैट पीबी विल बी आल्सो फॉर 10 सेंटीमीटर। अनदर थिंग, अगर आप यहाँ पे कोई सेंटर कंसीडर करते हो देन वी नो दैट ये आप हमेशा क्या करोगे, अगर करते हो जॉइंट देन OA is always perpendicular to a B as well as B is always perpendicular to B. Then आपको दिस पार्ट ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है? तो जैसे भी कुछ हमने लास्ट केस में किया था, अब सिर्फ आप यहाँ पे फोकस करो फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल PAOB, that's it. देखो अगर आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करते हो PAOB, what will we get here? That sum of all angles will be 360, मतलब measure of angle B plus measure of angle A plus measure of angle O plus measure of angle B is equal to 360 डिग्री, जिसमें से आपको P का वैल्यू पता है, A का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, तो सिर्फ आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे वैल्यू मेजर ऑफ एंगल दिस। गेटिंग दिस पार्ट? क्या ये इतना समझ में आ रहा है? सो मेजर ऑफ एंगल AOB is equal to 360 degree minus 90 degree minus 90 degree, which will be measure of the A and B, and given part is that 60 degree, right? So this will be total 120 degree. Then up to this, अगर ये आपका रहता है 120 डिग्री का तो एक और चीज का हमें करना पड़ेगा यहाँ पे यूज। देखो सीधा साधा से चले बट क्या क्या यूज करना पड़ रहा है देखिए यहाँ पे। अब सिर्फ यहाँ पे फोकस करो आप। Definitely you know that if we just talk about this triangle AOB, ये तो मेजर समझ में आ रहा था। OA and OB are nothing but radius of the same सर्कल, तो ऑब्वियसली वो तो सेम रहने वाले हैं, तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट मेजर्स ऑफ एंगल विच आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। देन अब सिर्फ अगर इसके बारे में आप डिस्कस करोगे तो ये जो भी कुछ रहेगा this one and this one will be of the same angle, तो हम क्या बोल सकते हैं, suppose this will be x, so x plus that a to b जो हमने 120 प्रूव किया है ये सब मिलके 180 होना चाहिए बिकॉज ये तो आपका ट्रायंगल है।
गेटिंग दिस पार्ट. सो यूजिंग दिस डायरेक्टली आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ट्वाइस x will give you answer as 60 डिग्री, hence x will be 30 डिग्री. क्या यहाँ तक डन है? अभी तक भी नहीं, राइट? बिकॉज ये पूरा आपका रहने वाला था 90 डिग्री का, उसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट आपका रहेगा अगर 30 डिग्री का, देन डेफिनेटली वन कैन से दैट ये जो आपका पी ए बी रहने वाला है, ये जो भी कुछ आपका पीए भी रहने वाला है, दिस विल बी फॉर 60 डिग्री. दैट्स इट. अगर ये 60, ये 60, ऑब्वियसली दिस विल बी द 60. अगर आपके पास कोई ऐसा वाला ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल 60 है, देन ऑब्वियसली वी नो दैट इट विल बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. देखो, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्कर के लिए पूछा जा सकता है. इसके लिए कैसे किया, क्या क्या गेटिंग दिस वन. बट अगर एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा तो भी आप कर पाओगे. जब एमसीक्यू के लिए करते हैं तो ये जो भी कुछ हमने रफ पार्ट के लिए किया है, रफ आपको कंसीडर करते हैं कि ये सब समझ में आना चाहिए. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आपने किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं. ये जो भी कुछ आपने एओबी फाइंड आउट किया था, मेजर ऑफ एंगल एओबी, ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था. इसके अंदर थोड़ा आगे जा रहे हैं. जब आप measure of angle AOB find out करोगे, then we are only focusing on this triangle where OA and OB are equal, right? So we know that angles opposite to equal sides are always equal, and सबका total 180 रहना चाहिए because ये तो triangle है बहुत, ये तो मिलना ही चाहिए. So x, अगर ये x रहेगा तो definitely ये भी आपका x बन जाएगा. x plus 120 is equal to 180. ठीक है? ये सब हो गया हमारी काम की चीज. जब एमसीक्यू क्लियर है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है. अब यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, ये भी 90 रहता है, ये भी 90 रहता है, यूजिंग टांजेंट रेडियस थ्योरम. इट मींस दैट ये जो आपके अपोजिट एंगल्स आपको मिलने वाले हैं, दैट इज पी से मतलब एंगल सबटेंडेड बाय दैट टू tangents. एंड अगर आप ओरिजिन से ड्राइंग करते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑब्वियसली these two will be always supplementary angle. मतलब आप टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 180 डिग्री डायरेक्टली सबट्रैक्ट करके देख लो. जब ये बन जाएगा दिस विल बी 120 डिग्री, सो 120 plus x will be 180, hence twice x will be 60 डिग्री, so x will be 30 डिग्री. बट अभी भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज आपको क्या मिला था, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका 30 डिग्री मिलने वाला है. नो दैट अगर ये पूरा 90 तो ये भी 90. तो सिर्फ अगर आपको ए पी ए बी की फाइंड आउट करना है, देन जस्ट सबट्रैक्ट 30 फ्रॉम दैट्स इट. ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे 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 उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा करके ट्विस्टेड वाले क्वेश्चन है. बट अगर देखा जाए, एक बार आप समझ जाओगे कि एक्चुअली हमने किया क्या है, तो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा हो सकता है. ठीक है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो जितने भी पीवाई क्यूज हम देखते हैं, 1 और 2 मार्कर वाले पीवाई क्यूज बहुत ज्यादा ट्विस्टेड आ रहे हैं. जो डायरेक्टली 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट मैनर से रहता है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है. सी, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम टेरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अगेन वी कम फॉर दिस वन, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया हुआ रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. फाइन. क्या है देखो, a circle touches the four sides of the quadrilateral ABCD. कुछ sides AP, BC, CD and AD given to you. चलो हम कर ही देते हैं लगो हाथ के क्वेश्चन. क्या करना था आपको, कोई एक ऐसा सर्कल करना है ड्रॉ. देन आफ्टर दैट उस जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो सर्कल के सारे कुछ ऐसे टच करने वाला. ओके, दैट्स इट. तो ये कुछ आपका एबीसीडी रहने वाला था. एबीसीडी, व्हाट इज द गिवन पार्ट, दैट लेंथ ऑफ एबी इज इक्वल टू 6. लेंथ ऑफ एबी मतलब ये पूरा आपका बन जाएगा 6. देन लेंथ ऑफ बीसी इज इक्वल टू 7. देखो, अगर 1 मार्कर के लिए आता है तो ऐसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन मिलेगा. बट अगर ये सेम क्वेश्चन विदाउट यूजिंग दैट
6, 7, 4 आपको एज इट इज भी पूछा जा सकता है, बट बहुत ही सीधा साधा केस रहने वाला है। आपको यूज क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ रहता है letter, so B, A, B and C are nothing but 4 points which are on the exterior part, and ये सारे के आपको tangents दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपके बन जाएंगे tangents, करेक्ट। सपोज आई विल से दैट दिस विल बी द x, अगर ये आपका ए एम बन जाता है x, देन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ में n कंसिडर करते तो ये भी आपका x बन जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट हम ये कंसिडर करते हैं, सपोज दिस विल बी दैट ओ पॉइंट, तो अगर आपका बी एम रहता है y, तो ये भी आपका y बन जाएगा। गेटिंग दिस वन, क्या आपको ये क्लिक हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, यस जस्ट थिंक ऑन इट, बिकॉज सेम टाइप का थ्योरी क्वेश्चन हम आज भी के लेक्चर में प्रूव कर रहे हैं, ओके, जिसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। यस, चलो नाउ नेक्स्ट वन, अगेन वन मोर टाइप ऑफ टिपिकल क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, या तो आपको कॉर्ड फाइंड आउट करना होता है या फिर एरिया, समथिंग लाइक दिस। दे आर टॉकिंग अबाउट टू concentric circles of the radius 5 centimeter and 3 centimeter. Then we have to find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब ऐसी वाली लार्जर सर्कल की जो आपको यहाँ पे कॉर्ड दिखाई दे रही है, which touches the smaller circle, touches the smaller circle मतलब ऑब्वियसली वो tangent रहने वाली है, राइट। तो अगर ये आपका रहेगा tangent, then we know that using radius tangent theorem we can say that measure of angle OPA will be 90 degree। तो अगर ये 5 रहता है, ये 3 रहता है, then definitely AP will be 4। एंड अनदर पॉइंट इज दैट अगर ये ऐसा कुछ आपके पास रहता है, then again using that correspondence of two triangles, you can say that OPA and OPB are always congruent triangles because 90 degree ये तो फिक्स रहेगा, ये तो आपका 3 सेंटीमीटर सेम ही रहने वाला है। OA is same as the OB, करेक्ट। सो RHS का यूज करके आप ये बोल सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल आपके बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलते हैं तो ओके, सो अगर ये 4 है तो ये भी 4 बन जाएगा। hence required answer that is length of AB is equal to 8 centimeter। getting this part, see, if you want the detailed solution here we have it, but सिर्फ समझने की कोशिश करो, लॉजिकली देखो, बिकॉज देखो बहुत कम दिन रहे हैं, अगर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप डिटेल सॉल्व करते जाओगे तो डिफिकल्टी आ जाएगी, टाइम नहीं जाता, ओके। हेंस जो भी कुछ आप स्टडी करने वाले हो वो स्मार्ट स्टडी करो सो दैट कम टाइम में ज्यादा हो, ओके। नाउ सी दिस वन, prove that the tangents at the end of the chord of the circle make, sorry, prove that the tangents at the end of the chord of the circle make equal angles with the chord। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जिसका हम बहुत बार यूज कर रहे थे एमसीक्यू के लिए, ये वन ऑफ दी आस्क थ्योरी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। बट आपको करना क्या है, देखो हमने एक चीज अच्छे से देखी थी, जब भी क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल्स नजर आते हैं या फिर आप फॉर्म कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है दैट कैन बी प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन दीस टू ट्रायंगल्स। जब आप कॉन्ग्रुएंसी पे जाओगे तो इजीली जो भी कुछ आपको प्रूव करना है वो दिखाई भी देगा। आपको क्या पता होता है, ए से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, देखो सबसे पहले मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको वे ऑफ थिंकिंग क्या रहना चाहिए, मतलब अगर कुछ अलग क्वेश्चन भी आता है तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। फाइन, क्या दिया था देखो यहाँ पे, दैट ए इज नथिंग बट एन एक्सटीरियर पॉइंट जिससे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, राइट। So we know that length of tangents are always equal. It means that AB is same as the ST। एक और चीज
आपको यहाँ पे नजर आएगी दैट मेजर ऑफ एंगल BDA एंड मेजर ऑफ एंगल CDA इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ये बात? तो अगर सिर्फ आप यहाँ पे देखोगे इन द ट्रायंगल ADB एंड इन द ट्रायंगल ADC, क्या क्या आपको सेम दिखाई दे रहा है? फर्स्ट पार्ट इज दैट AD इक्वल्स टू AD बिकॉज ऑब्वियसली कॉमन साइड है। सेकेंड पार्ट इज दैट वी कैन से दैट मेजर ऑफ एंगल B इज सेम एज मेजर ऑफ एंगल D which is equals to 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री वाला अगर केस है तो सबसे पहले आप ट्राई करोगे RHS के लिए, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल मिलना चाहिए। हाइपोटेन्यूज शुड बी सेम एंड वन ऑफ द साइड शुड बी सेम, करेक्ट? तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली 90 डिग्री के अपोजिट जो आपको साइड दिखाई दे रही है वो तो मिल ही जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? सो AB equals to AC, that's it। ये इतना समझ में आ रहा है? Getting this one? So using RHS property, we can say that these two triangles are congruent। अगर वो congruent मिलता है तो obviously आप क्या बोल सकते हो? सिंप्लिसिटी का यूज करो। सिंप्लिसिटी आपकी बहुत ही ज्यादा काम वाली चीज है, ठीक है? उसके लिए सिर्फ आपको वो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करना है ये पता होना चाहिए। गेटिंग दिस पार्ट? क्या ये समझ में आ रहा है? सी, वी जस्ट हैव टू डू दिस पार्ट हियर, दैट्स इट। गेटिंग दिस वन? तो अगर ये आपका बन जाता है कॉन्ग्रुएंसी ऐसे किया है व्हाटएवर इट इज, सो एबीडी एंड एसीडी, अगेन आप ये बोल नहीं सकते हो, ये बन जाएगा आपका सेम। कॉर्ड के एंड पे जो था, अगर हमने जो प्रूव किया था लास्ट केस में, हम ये एंगल से में ये प्रूव करें, अगेन ये भी आपकी पार्ट ही रहने वाले ना, तो वो भी बन जाएगा सेम, दैट्स इट। सो वी जस्ट हैव टू प्रूव दिस पार्ट। लास्ट किसी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये भी प्रूव करने के लिए बोला है, ठीक है? इसके लिए हम ये सारे पार्ट देख रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम का भी आपका सेशन था क्वाड्रेटिक का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे हैंडपिक है जो आपको पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फाइन, अगेन सी वी हैव दैट PA इज इक्वल टू PA is given as 10 सेंटीमीटर। ये जो एंगल आपका रहेगा ये कुछ 60 डिग्री का बोला गया है। वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द लेफ्ट AB हियर। अगेन द सेम पार्ट लास्ट केस में भी किया था, रिपीटेडली पूछा बिकॉज़ सिर्फ डायग्राम के साथ होती है। हमें क्या पता है? ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोलोगे देन OA perpendicular to PA and this one, so opposing angles will be supplementary। मतलब ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री का। जब यहाँ तक काम हो जाएगा then only focus on this triangle। अगर ये आपका 120 का है तो ये सब मिलके 180 रहना चाहिए, बट वी नो दैट AO is same as BO, so angle opposite two equal sides are always equal। जैसे हमने ये 30 प्रूव किया था, टोटल बन जाएगा 90 का, एक बन जाएगा आपका 60 का, दैट्स इट। 60 का रहेगा मतलब इक्विलैटरल रहेगा, इक्विलैटरल रहेगा मतलब दैट्स इट। गेटिंग दिस पार्ट? क्या ये समझ में आ रहा है आपको? देखो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, सो दैट सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको आंसर क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। बट इतना प्रैक्टिस आपका कब होगा? जब आप ईच एंड एवरी इवेंट अच्छे से देखोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, दैट। So two chords AB and CD of a circle intersect each other at P outside the circle. Intersect each other at P outside the circle. If AB is equal to 5, BP is equal to 3, PD is equal to 2, then we have to find what is the value of CD. Again the part is that जब भी ऐसे कुछ केसेस आपको वहां पे दिखाई देते हैं जहां पे आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, तो सिर्फ आपको उसका ये बन जाएगा आपका फर्स्ट। For what we have to do, called intersect each other at P, मतलब P ये कोई आपका बन जाएगा extreme left point, correct? अगर ये ऐसा रहता है आपके पास कुछ केस, then we can say that PA cross PB is equal to PC cross P, length of the tangent from P। समझ में आ रहा है ये बात?
ये देखो ये वन ऑफ द थ्योरी पार्ट है जो आपने प्रूव किया होगा, बट यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करना होता है दैट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी. Okay. Now we know that PA is nothing but AB plus PB. Getting this, PA can be written as AB plus PD. Similarly, PC can be written as PD plus CD. That's it. So जो वैल्यूज आपको पता है वो यहाँ पे पुट करो एंड वैल्यू फाइंड आउट करो. Getting this one. See each and every जो भी ये क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के हम कंसिडर कर रहे हैं. ये जो क्वेश्चन थ्योरी या फिर 2 मार्कर के लिए देख रहे हैं वो आपको एज एन 1 मार्कर या फिर एमसीक्यू के लिए भी पूछा जाएगा. सिर्फ ये थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है जहाँ पे आपको कॉर्ड का मेथड यूज करना है. डन. गेटिंग दिस वन. फाइन. अगेन सेम वन हमने जस्ट प्रूव किया था लास्ट केस में. जब भी आपको वहां पे ट्रायंगल दिखाई दे आपको करना क्या है दैट कैन बी प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी फॉर दिस टू ट्रायंगल्स. जब आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखना है तो चाहे आपको जो भी कुछ पूछेंगे आप सीबीसीडी का यूज करके इजीली कर पाओगे. फाइन. यहाँ पे आपको क्या करना था देखो दैट प्रूव दैट एंगल टू tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining point of contact to the center. मतलब सीधे डायरेक्शन में आपको करना क्या है ये जो P एंड वो आपको सप्लीमेंट्री ये प्रूव करना है. सप्लीमेंट्री मतलब आपको 180 में सिर्फ वहां पे प्रूव करना है. दैट्स इट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दैट टेंजेंट रेडियस थ्योरम. मतलब ये जो ऐसा आपको दिखाई दे रहा था ये पूरा केस सपोज ये O था ये आपका P था A एंड B. ओके वेयर A एंड B विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हियर. ये ऐसा कुछ रहेगा आपके पास यहाँ पे सर्कल. आपको क्या पता होता है ऑलवेज टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री बन जाएगा. तो ये जो भी कुछ ओ ए पी बी आपको दिखाई दे रहा है व्हिच इज नथिंग बट क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स की सम रहती है 360. 360 में से सबसे पहले ये 90 आप हटा दो तो आपको क्या मिलेगा देयर विल बी ओनली ए पी बी प्लस ए ओ बी. सो मेजर ऑफ एंगल ए पी बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी व्हिच इज इक्वल टू 180. यही तो रहता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का केस. दैट्स इट. देखा मतलब जो आपको एमसीक्यू के लिए पूछा गया था वही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके उन्होंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिया है. सिर्फ आपको पता क्या होना चाहिए यहाँ पे अगर ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री वाला कुछ बोल रहे इट मींस दैट उन दोनों की सम आपको 180 मिलनी चाहिए. दैट्स इट. गेटिंग दिस वन. समझ में आ रहा है. ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री का भी केस रहता है. फिर गेटिंग दिस पार्ट ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया हुआ थ्योरी क्वेश्चन है. सबसे पहले वाला थ्योरी क्वेश्चन इज नथिंग बट जिसके लिए आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ हमारे इस पूरे में हम यही कर रहे हैं. ईच एंड एवरी जो भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैंडपिक है. या तो आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए या फिर आपको एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा. सी ये अगर ऐसा कुछ रहता है आपके पास पैरेलल सर्कमस्टेंड अ सर्कल इज अ रोम्बस. रोम्बस रहेगा मतलब क्या है जो भी कुछ आपको अपोजिट साइड्स मिलते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल रहने वाले हैं. ये ऐसे कुछ आपको करना है प्रूफ. दैट्स इट. एंड पैरेललोग्राम है ये तो आपको पहले से पता है. तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू सबसे पहले हम वे ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा ये देखते हैं. आई कैन सी ए बी सी डी आर जस्ट 4 exterior points here. As these are four exterior point के बारे में हमने थ्योरम क्या देखा था अगर आप exterior points से ऐसे दो tangents draw करते हो then length of tangent will be always equal. Suppose इसे हम बोलते हैं small a. So we can say that PB and PQ are equal. अब आ जाएंगे हम A की तरफ. राइट. A ये बन जाएगा आपका एक्सटीरियर पॉइंट. तो एक P and AS आपके रहने वाले हैं सेम यूजिंग दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. सपोज इसे हम बोलते हैं स्मॉल p. करेक्ट. आई थिंक नेक्स्ट मेथड तो आपको रिलीज लर्न अभी ये बन जाएगा कुछ आपका C एंड रिमेनिंग विल बी D.
Done up to this part. But उन्होंने आपको क्या दिया था? That this will be a parallelogram. ये parallelogram मतलब पहले से आपको क्या पता है यहाँ पे जेट एंगल का केस पैरेलल रहते हैं. That's it. See, यहाँ इतना तो हमने किया था. ये हमारा स्मॉल ए था, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड सो ऑन. अब आप क्या करोगे? सिर्फ आपको वो करना है ईच एंड एवरी केस ऐड. मतलब यहाँ पे जो सब आपको ए बी बी सी सी ऐसे कुछ मिल रहा था वो आप सिर्फ करने वाले हो यहाँ पे ऐड. सपोज PB is equal to QB, then AP is equal to AS and something like this. ये इतना पार्ट समझ में आ रहा है. उसके बाद आप इन सबको करोगे ऐड. ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक बार आप PB करोगे, एक बार आप AP करोगे. गेटिंग दिस वन. मैं सिर्फ अलग अलग कलर में लिख रही हूँ सो दैट आपको इजीली क्लिक हो जाए. नेक्स्ट पार्ट हम बोलेंगे जो C से आप ज्वाइन वाले थे. So CQ is same as CR and next part is that DS is same as a DR. तो अगर आप इन सबको करते हो ऐड तो आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज दैट PB is equal to AP. Are you able to recall these one? So PB is plus AP. अगर आप PB and AP करते हो ज्वाइन, अगर आप PB and AP करते हो ज्वाइन, then we know that APB are just collinear point. Then you will get only AB there. Similarly, जब आप CQ and DS ये ऐसे कुछ करते हो ऐड, उस केस में आपको क्या मिलेगा? ए अलग ये पार्ट है आपका एस क्यूबी. ये आगे ना आपका बन जाएगा सीबी वाला पार्ट. समझ में आ रहा है ये केस? गेटिंग दिस वन. So after doing this, you will get AB plus CD is equal to AD plus BC. That's it. But पहले से आपको ये पता होता है that जो गिवन पार्ट था वो पैरेललोग्राम था. पैरेललोग्राम रहेगा मतलब CD and AB ये जो आपको अपोजिट साइड्स वहां पे दिखाई दे रहे थे CB and AD और AB and CD ये जो भी कुछ आपके अपोजिट साइड्स रहेंगे ऑब्वियसली दोस विल बी इक्वल. अगर वो इक्वल है देन यू कैन रिप्लेस CD by AB, you can replace BC by D. That's it. So twice AB is equal to twice AD, hence AB is equal to AD. But we know that AB is equal to CD because वो पहले से अपोजिट वाले हैं. आपने अगेन क्या मिला? जो ये आपको एडजेसेंट साइड मिल रहे थे वो भी सब सेम रहेंगे. इट मींस दैट जितने भी साइड्स आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे सेम हैं. राइट? मतलब अपोजिट साइड्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज ऑल साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ. तो ये रहती है आपकी रोमस की प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है ये पार्ट? हमने क्या किया? फर्स्ट पार्ट आप सिर्फ इतना ही कर रहे थे, जो भी कुछ रहेगा आप सिर्फ ऐड कर रहे हो. जब आप ये ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा. Again, we are just using that as the given part is a parallelogram. तो फिर required आप करोगे वहां पे use. Okay, getting this one. The last question for today's session. In the given figure, PQ and PR are two diagonals. अब आप खुद से करने की कोशिश करोगे. ओके, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपको करना क्या है यहाँ पे. ऐसे भी कर पाओगे. ओके, कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है या फिर 2 मार्क का रहेगा आफ्टर. अगर 2 मार्क का 3 मार्क का रहता तो आपको जितना भी कुछ उस क्वेश्चन के बारे में पता है वो आपको प्रिसाइजली लिखना है. राइट? मींस वी नो दैट यूजिंग tangent radius theorem we can say that PRO and PQO are of 90 degrees. So in the quadrilateral ORPQ we can see that सबका टोटल मिलना चाहिए आपको 360. 360 में से ये सब आप कर दो माइनस. So you will get that the required one, suppose it will be of x, then x plus 46 is equal to 90. Right? Opposite वाले supplementary रहता है, ये हमने लास्ट थ्योरम में भी प्रूव किया है. बट अगर पूरा लिखोगे 2 मार्क रहता है तो आप डायरेक्टली यूज करोगे कंसेप्ट का. दैट अगर ऐसा कुछ है तो ये वाले जो अपोजिट आपके रहते हैं एंगल्स दोस विल बी सब्स्टिट्यूटेड. Hence, required answer is nothing but 180 minus 46. That's it. This will be the solution for this question, which is equal to 134 degree. I hope ये जो भी कुछ हमने इस सेशन में ये है ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे.
डेफिनेटली। तो इन आर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सिर्फ देखो, ऐसे हो सकता है कि जो हमने एमसीक्यू टाइप कर रखा था वो आपको थ्योरी क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा, बट सी सर्कल, ये जो आपका सिलेबस है बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टू थ्योरम्स। एज इट इज, अगर थ्योरम आते हैं तो प्रूव करने के लिए तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं देन यू कैन इजीली गो थ्रू इट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गेट ओके फाइन, नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। सो सी यू टुमारो, टिल देन स्टडी वेल, बाय बाय।